مافیاز اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ، حکومت کا عزم۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرح کیڈسٹرل میپنگ کی بھی سیاسی اشرافیہ اور لینڈ مافیا نے بھرپور مخالفت کی۔ سرکاری اراضی کی میپنگ میں مزاحمت کی وجوہات سامنے آئی۔ قبضہ مافیا جنگلات سمیت بڑی سرکاری رقبے پر قابض ہے۔ ڈیجیٹل ریکارڈ کی مدد سے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ چیف جسٹس سینئر ججز کے بعد کانفرنس کا اختتام مفرور شخص کی تقریر سے ہوا، جو ججز اور عدلیہ کی توہین کے سوا کچھ نہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اسی صورت وہ معاون کا کردار ادا کر سکتے ہیں، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ عوام کے ووٹ چوری کرنے والے آج ای وی ایم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ای وی ایم مشین سے ووٹ ضائع ہونے اور انتخابی دھاندلی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ پوری دنیا ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے، جبکہ ٹھپا مافیا کے ذریعے اقتدار میں آنے والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا فیصل آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے حسن ابدال پہنچ گئے۔ گردوارہ پنجہ صاحب میں تقریبات کل بھی جاری رہیں گی۔ کرتارپور راہداری بچھڑے ہوئوں کو ملانے لگی۔ بھارتی سکھ یاتری نے اپنے پاکستانی بچپن کے دوست کو پہچان لیا۔ متحدہ عرب امارات نے کابل میں سفارت خانہ کھول دیا۔ طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جرمنی رواں ہفتے، جبکہ ترکی اور اٹلی سمیت کئی نیٹو ممالک بھی جلد سفارت خانے کھولیں گے۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی: بعض طاقتیں افغان عوام کو امداد اور بھیک پر مجبور رکھنے کی خواہش مند ہیں۔ $9.5 ارب کے منجمد اثاثے واگزار ہو جائیں تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ افغان وزارت خزانہ۔ پنجاب حکومت نے اسموک کو آفت قرار دے دیا۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی سے متعلق سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ لاہور میں 5 اینٹی اسموک اسکواڈ تشکیل۔ محکمہ ماحولیات، انتظامیہ اور متعلقہ ادارے اسموک کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ پلان پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ آلودگی پھیلانے والی صنعتوں، گاڑیوں اور اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ عالمی ادارے نے خطے میں آلودگی کے پھیلاؤ کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا۔ پاکستان نے آلودگی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ قبضہ مافیا سے جنگلات کے 7 لاکھ ایکڑ اراضی واگزار کرائیں گے۔ معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم۔ نہتے کشمیری بھارتی قابض فوج کی بربریت کا شکار۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز۔ حریت کانفرنس کا کشمیری نظر بندوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار۔ حیدر پورہ جاری مقابلے میں بے گناہ افراد کے قتل کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ کورونا کیسز میں مسلسل کمی، شرح 0.78% پر آ گئی۔ مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا کے 313 نئے کیسز رپورٹ، 1054 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 1 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ گرین شرٹس کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر آئی سی سی نے فاسٹ بالر شاہین آفریدی پر میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد کر دیا۔
दूसरे T20 मैच में शाहीन आफरीदी ने बांग्लादेश के बल्लेबाज अफीफ हुसैन की जानिब गेंद फेंकी जो उनके पांव पर लगी। शाहीन आफरीदी के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट का भी इजाफा। और भारतीय शहर भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी। कौमी जूनियर टीम ने चिली को प्रैक्टिस मैच में 3-0 से हरा दिया। कप्तान राना वहीद, अब्दुल हन्नान और मोइन शकील के गोल। कौमी जूनियर टीम कल कनाडा के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कंवल और मैं हूं शाहिद नसीम। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आइए इस इमारत की तामीर में उम्मीद की एक ईंट लगाएं और अपने हाथों से इस अस्पताल की तामीर करें। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कराची। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए 0800 11 555 पर कॉल करें। एक बार फिर से खुश आमदीद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरह हुकूमत को कैडेस्ट्रल मैपिंग के आगाज़ पर भी शदीद मुज़ाहमत का सामना रहा। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि EVM की तरह कैडेस्ट्रल मैपिंग से सरकारी अराजी के सर्वे के पहले मरहले के नताइज से इस मुज़ाहमत की वजूहात सामने आ गईं कि किस तरह सियासी अशराफिया लैंड माफिया के साथ मिलकर जंगलात समेत बड़े सरकारी रकबे पर काबिज थी। उन्होंने कहा कि मुसद्दका डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से अब हम इन लैंड माफियाज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंगलात की ज़मीनों पर लैंड माफिया के इस कब्जे से पाकिस्तान को जंगलात के मुनासिब हजम के हवाले से दरपेश मौजूदा कमी में मजीद शिद्दत पैदा हुई, जबकि दीगर होशरुबा हक़ाइक़ के मुताबिक 3 बड़े शहरों की ज़मीनों समेत लैंड माफिया के ज़ेर कब्जा सरकारी अराजी की मजमूई मालियत तकरीबन 5,595 अरब रुपए है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगलात के ज़ेर कब्जा रकबे की कीमत तकरीबन 1,869 अरब रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कब्जा ग्रुपों के पास सरकारी अराजी के रिकॉर्ड की तफसीलात भी शेयर की, जिसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर सरकारी अराजी का सर्वे किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के 81,200 मुरबा किलोमीटर अराजी जो कुल का 88% है, इस पर काम मुकम्मल है। और आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। मुल्क की बका और तरक्की के लिए लुटेरों से जंग जारी रहेगी। मुल्तान में एक इस्तकबालिया की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लुटेरों से लूटी हुई दौलत की वापसी और मुल्क से करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है। तहरीक इंसाफ कौम को एक मजबूत निज़ाम और अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत तवील मुद्दती तरक्की और कानून की बालादस्ती चाहती है। हम चाहते हैं आवाम सर उठाकर वकार से चले। उन्होंने कहा कि साबका अदवार में आवाम को दी गई महरूमियों को आज़ाला करना चाहते हैं। कौम को अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ देना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस की कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर की तकरीर से होना जजेस और अदलिया की तौहीन के सिवा कुछ भी नहीं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मशवरा दिया कि उन्हें गैर जानिबदार रहना चाहिए, इसी सूरत वो मुआविन किरदार अदा कर सकते हैं। अपने एक और ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया गया था। मुझे बताया गया था कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुल्ज़िम की तकरीर से होगा। ज़ाहिर है ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, लिहाजा मैंने शिरकत से मुआज़रत कर ली। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर मुतारिफ करवाए और आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने का सेहरा भी उन्हीं के सर है।
वो अब कोई भी अवाम का वोट चोरी नहीं कर सकेगा। वो फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे यासिर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सड़क की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखने के बाद अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर ममलिकत इत्तलाआत फरूख हबीब ने कहा कि अवाम के वोट चोरी करने वाले आज EVM की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया के हर जगह के ऊपर हो रहा है, लेकिन जो सिंध के अंदर बैठा ठप्पा माफिया पीपल्स पार्टी की शक्ल में, या जो शरीफ ख़ानदान को अवाम ने 2018 के अंदर रिजेक्ट किया, वो उसी ठप्पा सिस्टम की हमायत करना चाहते हैं, जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर जाली वोट डाले जाते हैं डब्बों के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए किसी का वोट जो है वो ज़ाया नहीं होगा। पोलिंग बंद होने के बाद 15 मिनट 20 मिनट बाद आपका नतीजा आपके हाथ में होगा। फरूख हबीब ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने बैरून मुल्क महल बनाए, जबकि वजीर आजम इमरान खान कम आमदनी वाले अफराद को आसान इक़्सात पर घर फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाइस पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है। पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो पेट्रोल है उसके ऊपर सेल टैक्स हुकूमत 17% ले सकती है, लेकिन हुकूमत पेट्रोल के ऊपर ज़ीरो टैक्स ले रही है, ज़ीरो सेल टैक्स ले रही है, ज़ीरो। अगर वो सेल टैक्स पूरा लगा दिया जाए तो पेट्रोल इससे ज़्यादा और महंगा हो जाए, क्योंकि हमें आलमी सतह पर पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, महंगा मिल रहा है, हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे ही इसका रेट नीचे आएगा, इसका फ़ायदा फौरी तौर पे अवाम को पहुँचाया जाएगा। वजीर ममलिकत ने कहा कि एहसास राशन कार्ड के जरिए 2 करोड़ खानदानों को अशियाए खोरोनोश पर सब्सिडी फराहम की जाएगी, जबकि इस साल के आखिर तक पंजाब भर में हेल्थ कार्ड फराहम कर दिए जाएंगे, जिससे शहरी 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मालिजे की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताएं कि सिख मज़हब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 592वें जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं, जबकि ननकाना साहब में तकरीबात के बाद सिख यात्री हसन अब्दाल पहुँच गए हैं। गुरुद्वारा पंजा साहब में जारी 3 रोज़ा मजहबी रसूमात कल इख्तिताम पजीर होंगी, जिसके बाद यात्री दीगर गुरुद्वारों की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। तफसील बता रहे हैं सदाकत अली। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए हुए सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम की जानब से उन्हें जो प्यार मिला वो हमेशा याद रहेगा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, हर तरह की सहूलत, हर किसी ने प्यार, हर किसी ने बहुत मोहब्बत जताई। भारत से आए हुए सिख यात्रियों का कहना है कि वाघा बॉर्डर से लेकर हसन अब्दाल तक उन्हें जो प्यार मिला वो उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। सदाकत अली, PTV न्यूज़, हसन अब्दाल। और नाज़रीन, करतारपुर राहदारी बिछड़े हुओं को मिलाने लगी है। भारत की तरफ से राहदारी के जरिए आने वाले सिख यात्री को उसके बचपन के पाकिस्तानी दोस्त ने पहचान लिया और 75 साल बाद दोनों दोस्तों में मुलाकात हुई। अमृतसर के गोपाल सिंह करतारपुर गुरुद्वारा में आए थे कि वहां पर मौजूद पाकिस्तानी बशीर अहमद ने गोपाल सिंह को पहचान लिया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और बचपन की यादें ताज़ा करने लगे। खुशी के साथ दोनों की आंखों में आंसू भी आ गए। 1947 में पाकिस्तान भारत की तकसीम से कबल दोनों दोस्त थे और एक साथ खेलते थे। तब मोहम्मद बशीर की उम्र 19 साल थी। मोहम्मद बशीर का ताल्लुक शकरगढ़ से है और उनका पेशा खेती बाड़ी है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर राहदारी से इंडियन सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। करतारपुर राहदारी के CEO मोहम्मद अतीफ़ का कहना है कि आज 170 भारतीय सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने के लिए दरबार साहिब करतारपुर पहुंचे। यात्री दरबार साहिब करतारपुर में सहूलियात की फराहमी और शानदार इंतजामात पर इंतहाई खुश दिखाई दिए। दरबार साहिब करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शामिल होने के लिए दीगर ममालिक से भी सिख यात्री दरबार साहिब करतारपुर आ रहे हैं।
متحدہ عرب امارات نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ کابل میں UAE کے سفارت خانے پر ایک بار پھر پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ انہوں نے برطانیہ کی جانب سے بھی افغان حکومت کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے افغانستان میں استحکام آئے گا۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ عرب امارات کے بعد افغانستان میں عنقریب مزید سفارت خانے بھی کھلیں گے۔ جرمنی بھی اسی ہفتے کابل میں اپنا سفارت خانہ کھول رہا ہے۔ ملائیشیا کی سرکاری خبر ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ترکی اور اٹلی سمیت نیٹو کے کئی رکن ممالک بھی جلد ہی کابل میں اپنے سفارت خانے کھول رہے ہیں۔ امیر خان متقی نے کہا کہ انہوں نے ملائیشیا کو بھی کابل میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کی دعوت دی ہے۔ ادھر ایران کا خصوصی طیارہ امدادی سامان لے کر کابل پہنچا ہے۔ گزشتہ 20 سال میں پہلی بار کسی ایرانی طیارے نے افغانستان میں لینڈنگ کی ہے۔ جہاز پر 6 ٹن خوراک اور ادویات لدی ہیں۔ افغان وزارت خزانہ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران ملکی برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور اس عرصے میں 26.8 ارب ڈالر کی برآمدات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے افغانستان کے منجمد کیے گئے 9.5 ارب ڈالر واگزار ہو جائیں تو نہ صرف عوام کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے بلکہ مفلوج معیشت کو بھی بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض طاقتیں افغان عوام کو امداد کی بھیک پر مجبور رکھنے کی خواہش مند ہیں۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے دھمکی آمیز بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر دفاع کا اشتعال انگیز بیان ہمسایوں سے دشمنی کا عکاس ہے۔ بھارت کی پاکستان مخالف مہم مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت کی پاکستان مخالف مہم عالمی برادری میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سمیت ہمسایوں پر الزام تراشی اور غلط بیانی بھارت کا وتیرہ ہے۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک پر بھارتی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ KMS کے مطابق سری نگر سے ایک بیان میں حریت ترجمان نے کہا کہ بھارتی جیلوں میں جس طرح سے کشمیر کے سیاسی قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ 20 بزرگ رہنما اور کارکن جان لیوا عارضوں میں مبتلا ہیں لیکن انہیں طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ ترجمان نے حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، یاسین ملک اور بھارتی جیلوں میں نظر بند ہزاروں قیدیوں کی ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کیا۔ جموں کشمیر میس موومنٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیر میں مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھا رہے ہیں اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سابق بھارتی وزیر یشونت سنہا کے زیر قیادت سول سوسائٹی گروپ نے حیدرپورہ جعلی مقابلے میں بے گناہ شہریوں کے قتل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سچ سامنے لانے کے لیے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے قصبہ اسلام آباد میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے صدر غلام احمد میر نے کہا کہ نریندر مودی بہت جلد دفعہ 370 کی منسوخی پر بھی معافی مانگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے جس طرح زرعی قوانین کو واپس لیا اسی طرح جموں کشمیر میں غیر قانونی تبدیلیاں بھی واپس ہوں گی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے بلاول زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت گیس کے نئے ذخائر اور ٹرمینلز کے لیے سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ PTI نے اقتدار سنبھالا، ہر شعبے ڈیفالٹ کے قریب تھے اور ملکی معیشت تباہ حال تھی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ بلاول بتائیں 13 سال کے دوران سوائے کرپشن کے سندھ میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بچھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام لاقانونیت، اندھیر نگری، چوپٹ راج، مہنگائی، لوٹ مار پر پیپلز پارٹی سے پناہ مانگ رہی ہے۔ سندھ کے ترقی، پینے کے صاف پانی، گرین لائن کی صورت میں بہترین سفری سہولیات، نالوں کی صفائی سمیت ہر کام وفاق کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ نااہل نواز اور زرداری جیسے چوروں اور عوامی مجرموں کے خلاف لڑنا ہی وزیراعظم عمران خان کی سیاست کا مقصد اور منشور ہے۔ ملک کی بقا اور ترقی کے لیے ہم کرپٹ اور چوروں کے خلاف یوں ہی لڑتے رہیں گے۔ بلاول زرداری کے بیان پر رد عمل میں شہباز گل نے کہا کہ نااہل اپوزیشن لفافوں کی مدد سے 3 سال سے LNG اور گیس پر پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ نااہلوں کی مہنگی بجلی کے معاہدوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ سمیت امریکہ اور چین میں بھی توانائی کا بحران ہے۔ حکومت نے مشکل وقت میں بھی 80 سے 90% تک اپنی ضروریات کے مطابق LNG کا حصول ممکن بنایا ہے۔ معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے نے خطے میں آلودگی کے پھیلاؤ کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا ہے۔ پاکستان نے اس حوالے سے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں
بھارت سے اس حوالے سے بات کرنا ہوگی۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان نے ٹرانسپورٹ کے اوپر یورو 5 پیٹرول جو ہے وہ دینا شروع کیا، الیکٹرک وہیکل کی پالیسی اوپر پیش رفت ہو رہی ہے، 10,000 بریک کیلز کے اندر زگ زیگ ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے، اسٹیل ملز کے اوپر لاہور میں جو ہیں ان کے اوپر اسکربرز لگائے گئے ہیں، اس کو انفورس کرانے کے لیے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے۔ ہم سب کچھ کر لیں، اس کے باوجود بھی یہ آلودگی انڈیا سے آ جاتی ہے۔ ناسا کی ایک رپورٹ چھپی ہے، انہوں نے باقاعدہ ڈیٹا کے ساتھ یہ اس رپورٹ میں یہ بات کی ہے کہ 90% جو یہ آلودگی کا ذریعہ ہے یہ پنجاب کے اندر جو ان کے فارمر اسٹبل برننگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں بھارت کے ساتھ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی طرف کا یہ آلودگی اور یہ گند ختم کرو۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا کہ سرکاری اراضی کی کیڈسٹرل میپنگ کر لی گئی ہے۔ ڈیجیٹل میپنگ کے مطابق جنگلات کی 7 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا ہے۔ قبضہ مافیا کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ کیڈسٹرل میپنگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل میپ جو ہے یہ ایک ایک انچ کی نشاندہی کر رہے ہیں پاکستان کے سرکاری املاک کی۔ جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس کے اندر تقریباً 50,000 اسکوائر کلومیٹر کی جو ہے یہ میپنگ کر لی گئی ہے۔ پنجاب اور کے پی کے اندر صرف جو قبضے کی زمین نکالی گئی ہے وہ 1,60,000 ایکڑ ہے جہاں سرکاری زمین پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ تقریباً 7 لاکھ ایکڑ زمین فارسٹ کی جو ہے اس پہ قبضہ ہوا ہے مختلف جگہ کے اوپر، اور اس کی مالیت جو ہے وہ 500 ارب روپے کی ہے جو کہ واپس لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات کو جلانے پر پابندی سے سختی سے عمل درآمد سے نپٹا جائے گا، جبکہ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب میں انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اسموک کو آفت قرار دیا گیا ہے۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی مانیٹرنگ کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ضروری اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ لاہور میں 5 اینٹی اسموک اسکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ماحولیات، انتظامیہ اور متعلقہ ادارے اسموک کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ پلان پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ آلودگی پھیلانے والی صنعتوں، گاڑیوں اور اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ کچھ بات کریں گے کورونا صورتحال کے حوالے سے۔ ملک میں کورونا کیسز میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 0.78% ہو گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے سمیع اللہ۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 40,019 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 313 مثبت رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ روز کورونا سے متاثرہ مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس وقت 1,054 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا کے خلاف ویکسینیشن کا عمل بھرپور انداز میں جاری ہے۔ پورے ملک میں اب تک مجموعی طور پر 12 کروڑ 4 لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں 2,15,000 سے زائد ویکسین کی خوراکیں لگائی گئیں۔ ملک بھر میں 4 کروڑ 90 لاکھ سے زائد افراد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ اتوار کا روز خصوصی طور پر دوسری ڈوز کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 51,66,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 25 کروڑ 75 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 23 کروڑ 25 لاکھ سے زائد افراد اس مہلک وبا سے صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ وائرس سے متاثرہ ممالک میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے، جبکہ برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کنبے کی تشکیل کے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ بڑھاپے کا سہارا بچوں کی زیادہ تعداد نہیں بلکہ قابل اور لائق اولاد ہوتی ہے۔ سوچ بدلو، زندگی بدلو۔ مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر سے ڈینگی کے 279 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے لاہور سے 217، راولپنڈی سے 14، گجرانوالہ سے 12 اور شیخوپورہ سے 7 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز پنجاب میں ڈینگی بخار کے باعث 6 افراد کی موت واقع ہوئی۔
सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 1378 मरीज दाखिल हैं। पंजाब भर में महकमा सेहत की टीमें डेंगू के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हैं। नाज़रीन, डिजिटल ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात के शोबे में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये बात इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक और तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दीमा अल यहिया के दरमियान मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया में बताई गई। एलामिया के मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ख़वातीन के किरदार को बढ़ाने, शहरी और देही इलाकों में यकसां डिजिटल सहूलियात की फराहमी, IT माहिरीन और कंपनीज़ के रुकन ममालिक में फ्री वीज़ा नकलो हरकत के लिए मुश्तरका कोशिशों और 10 लाख बच्चों में डिजिटल हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान इनोवेशन चैलेंज के इनेकाद पर भी इत्तेफाक किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हमारी आज़ाद अदलिया के फैसलों ने दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार हमेशा बुलंद किया है। ओकाड़ा की समाजी शख्सियत सैयद गुलजार हसनैन से बातचीत करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि खुद मुख्तार इदारे ही जमहूरियत की ज़मानत होते हैं। उन्होंने कहा कि बर वक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी से मुआशरे में जराइम को ख़त्म किया जा सकता है। उनका कहना था कि मुआशरे में अमन व अमान और तरक्की के लिए माशी खुशहाली नागुज़ीर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना अलवी का कहना है कि डाउन सिंड्रोम के साथ ज़िंदगी बसर करने वाले मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल होते हैं। मुआशरे पर बोझ समझने के बजाय इनकी दूसरी काबिलियतों से फ़ायदा उठाकर उन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जा सकता है। वो डाउन सिंड्रोम में मुब्तला अफराद के लिए फंड रेजिंग की तकरीब से खिताब कर रही थी। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। कराची गोल्फ क्लब के सब्ज़ाज़ार पर डाउन सिंड्रोम में मुब्तला अफराद के लिए अतियात जमा करने की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी बेगम समीना अलवी ने कहा कि डाउन सिंड्रोम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को माशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन और इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद को जहाँ वालिदैन और ख़ानदान के अफराद का सहारा दरकार होता है, वहीं तालीम का हुसूल और उन्हें हुनरमंद बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि ज़िंदगी की दौड़ में ऐसे अफराद को शामिल करने के लिए आगाही फैलाना समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इससे पहले बेगम समीना अलवी ने बाल को हिट लगाकर कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए वो गोल्फ कोर्स में मौजूद रहीं। तकरीब के आखिर में उन्होंने फातेह और रनर अप टीमों में ट्राफियाँ, शील्ड्स और नकद इनामात तकसीम किए। मुकाबलों में शामिल कई खिलाड़ियों और उनके मुआवनीन ने इनाम में मिलने वाली रकूम कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के फंड में अतिया कर दी। डाउन सिंड्रोम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की बहाली पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उनके साथ शफ़क़त का सलूक, हौसला अफजाई और बेहतर तालीम व तरबियत उन्हें माशरे का मुफीद शहरी बना सकती है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। माँ और बच्चे को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी और बच्चों में कम नशोनुमा के तदारुक के लिए हुकूमती कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। मुल्तान से फरहान मिर्ज़ा की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% यानी हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। शहरी इलाकों में ये शरह 34.8% और देही इलाकों में 43.2% है। 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों का कद उम्र के मुताबिक कम है। इसी तनासुब से 17.7% बच्चों का वजन कद की मुनासबत से कम है। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने के इक़दामात कर रही है। मुल्तान में 35% बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, जबकि ज़िला मुल्तान में 2018 से बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे का प्रोग्राम जारी है। मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी की रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम वो स्ट्रैटेजिक एक्शंस को अचीव कर सकें जो कि माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग को रिड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड है। हमारे पंजाब ने जो है वो घर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। इससे हमारे न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इससे जो है मेल न्यूट्रिशन चाइल्ड हैं साउथ पंजाब में जो है बहुत ज़्यादा में कमी भी आई है। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड में बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब से आए मरीज बच्चे ज़ेरे इलाज हैं, जिन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारे पास F75 होते हैं, F100 होते हैं और एक RUTF रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फीड होती है। वो एक साशे की फॉर्म में होती है। बच्चों को वो घर के लिए दे सकते हैं। पंजाब हुकूमत और यूनिसेफ के इश्तराक से पंजाब के 11 ज़िला में महकमा सेहत समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मैल न्यूट्रिशन के खात्मे के लिए अमल पैरा हैं। एहसास प्रोग्राम माओं को आगाही, खुराक की फरहमी और तमाम सेक्टर्स की कारकर्दगी से 2011 के मुकाबले में आज ग़िज़ाई किल्लत में 16% कमी आई है। सेहतमंद माशरे के क़याम से ही हम अपने समाजी और माशी अहदाफ बआसानी हासिल कर सकते हैं। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुआवन खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार ने दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया और सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर मुआविन खुसूसी ने कहा कि मुल्क की सकाफती और इलाकाई दस्तकारियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई मिल रही है। इससे पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब के वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने कौमी दस्तकारों को पंजाब की नुमाइंदगी करने पर सराहा। उन्होंने कहा कि जब मुल्क में आने वाले सयाह सवेनियर के तौर पर क्राफ्ट और दस्तकारियाँ खरीदेंगे तो कॉटेज इंडस्ट्री और मईशत भी मजबूत होगी। इस मौके पर दस्तकारों को दुबई एक्सपो में शिरकत करने पर असनाद दी गईं। दरख्त इंसानी सेहत और ज़िंदगी की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। माहौलियाती आलूदगी के बायस दरख्तों की अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। जहलम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के तहत बजवाला के मकाम पर मेगा प्लांटेशन डे का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, बल्गारिया के सफ़ीर, तलबा व तालबात और शहरियों ने 20,000 पौधे लगाए। इस सारे मामले की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे नईम भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीलियों से मुल्क को महफूज बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के तहत जेलम के नवाई इलाका बजवाला में ज़िला इंतजामिया और महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम मेगा प्लांटेशन डे की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन थे। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान में कभी किसी ने माहौल की बेहतरी का सोचा तक नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का आगाज किया। हमारी कोशिश है कि हम अपनी नस्ल को एक बेहतर माहौल फराहम करें। 25 एकड़ अराजी पर चौधरी फवाद ने पौधा लगाकर मंसूबे का आगाज किया, जिनके हमरा बल्गारिया की सफीर अरीना गैनिसवा ने भी पौधा लगाया। और ये जो इमरान खान साहब का प्रोग्रेटिव है, फवाद चौधरी साहब ने जो यहाँ पे एक्शन लिए हैं वो मुद्दतों याद रखे जाएंगे। यहाँ के माहौल के मुताबिक लोकल प्लांट्स हैं जिन पे आके परिंदे बैठेंगे और हमारी पूरी फूड चेन सिस्टम रिवाइव होगा। बेर, ऑलिव हो गया, जैतून है, इसमें फुलाई वगैरह है, जो भी हमारे लोकल दरख्त हैं उनको हम तरजीह दे रहे हैं और वो दरख्त जो माहौल दोस्त है। तलबा तलबात ज़िले महकमों सेवा सोसाइटीज ने भी 20,000 पौधे लगाए। तलबात ने हुकूमत के इस इकदाम को खूब सराहा। हम वज़ीर-ए-आज़म फवाद चौधरी के बहुत ज़्यादा मशकूर है जिन्होंने हमारे झेलम के लिए इतना बड़ा काम किया है। हम तकरीबन 2 साल पहले भी यहाँ पर आए और यहाँ के दरख्त देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। 95% दरख्त बरकरार हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी होप सेम फॉर दीज एज वेल। हम आपके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए ये इस तरह प्लांट की कैंपेन लगाई है। आखिर में वफाकी वज़ीर और बल्गारिया की सफीर ने महकमा पुलिस और रेस्क्यू 1122, डिफेंस महकमा हेल्थ और महकमा जंगलात के स्टॉलों का भी दौरा किया, जहाँ इन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। जबकि महकमा जंगलात की तरफ से चौधरी फवाद हुसैन और बल्गारिया की सफीर अरीना गैनिसवा को शील्ड भी दी गई। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा अपनी मंजिल की तरफ तेजी के साथ गामजन है। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेलम। बलूचिस्तान के ज़िला योब से खबर शामिल करेंगे, जहां एक मारूफ सियाहती मकाम पर सैकड़ों अफराद एक मुनफरिद जिरगे में जमा हुए। अपनी नौयत का ये पहला जिरगा था जिसमें किसी कत्ल, ज़मीन के तनाज़े या कबायली झगड़े के हल की बात नहीं हुई, बल्कि ये नायाब जंगलात और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलाया गया था, जिसमें योब और शिरानी में जंगलात की कटाई और परिंदों के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी की करारदाद मंजूर की गई। जिरगे के अराकीन ने इस बात का अहद किया कि वो साल के 12 महीनों में मौसम की मुनासबत से दरख्त और बीज के अलावा पौधे लगाएंगे। जिरगे ने कहा कि इलाकों में हर किस्म के शिकार पर सख्ती से पाबंदी के अलावा पहाड़ों में जंगली हयात और परिंदों के लिए पानी के तालाब बनाए जाएंगे और दरख्त लगाए जाएंगे। नाज़रीन, अब आपको मिलवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत के ऐसे शख्स है जिसने वतन अजीज़ को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए पिछले 2 साल में 20,000 पौधे लगाए हैं। देखते हैं अनवर ज़ेब मरवत की ये रिपोर्ट। एफसी से रिटायर्ड मुनीर खान नामी ये शख्स लकी मरवत के गांव मुस्लिम बाग से ताल्लुक़ रखता है और पेशे के लिहाज से अभी एक सरकारी स्कूल टीचर है। मुनीर खान का कहना है कि उन्होंने सरसब्ज़ व शादाब लकी मरवत के नाम से शुरू किए गए प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में 2 लाख दरख्त लगाने का अज़म कर रखा है और आज तक उन्होंने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में 21,000 के करीब पौधे लगा लिए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मेरे पौधे लगाने का ये मकसद है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्राइसिस हो रहे हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। सरसब्ज़ व शादाब लकी मरवत और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा मुनीर खान की बड़ी ख्वाहिश और मकसद है। मुस्तकबिल में भी वो अपने इस मिशन को जारी रखने का अज़म रखते हैं। दरख्त लगाना सदक़े जारिया है जो कि न सिर्फ माहौल को खुशगवार बनाते हैं बल्कि माहौलियाती तब्दीली में भी नहायत अहम किरदार अदा करते हैं।
انور زیب مروت، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لکی مروت۔ اور اب کچھ بات کریں گے شہر اقتدار کی معروف سیرگاہ شکرپڑیاں کی، جو اپنی نوعیت کا خوبصورت تفریحی مقام ہے۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے یہاں لگائے گئے یادگاری درختوں کی بدولت اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مزید تفصیلات جانیے مریم ملک سے ان کی اس رپورٹ میں۔ ہرے بھرے سدا بہار درخت، دلکش سبزہ زار پودوں سے بنائی گئی ماگلا ہلز، یہ ہے اسلام آباد کا خوبصورت سیاحتی مقام شکرپڑیاں۔ یہاں سے شہر بھر کا نظارہ دل موہ لیتا ہے۔ یہاں موجود یادگاری درخت 1960 سے قائم شکرپڑیاں کی اہمیت و افادیت دو چند کرتے ہیں۔ دورہ پاکستان پر آئے عالمی رہنما یہاں اپنے ہاتھوں سے درخت لگاتے رہے ہیں۔ سابق امریکی صدر جارج بش سمیت 133 عالمی رہنماؤں نے شکرپڑیاں میں درخت لگا کر پاکستان سے مضبوط تعلقات کا اظہار کیا، جن کی تفصیل درختوں کے ساتھ نصب تختیوں پر محفوظ ہے۔ وی آئی پی لان ہے، یہ صرف فارنر لوگوں کے لیے بنا گیا تھا، فرینڈ شپ کے لیے، اور اس کے ہمارے بھائی ہیں ساتھ کے، انہوں نے بہت اچھی ممٹین رکھی ہوئی ہے، اس کی دیکھ بھال ہم بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ یہاں کے مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اس جگہ کو بہت اچھی طرح مینٹین کیا ہوا ہے۔ یہ ایک تاریخی جگہ ہے، یہاں 1960 سے جتنے بھی عالمی رہنما گزرے ہیں ان سب نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے ہیں۔ کا جو انوائرمنٹ ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ ایک بہت ہی یادگار جگہ ہے۔ 1964 میں چینی صدر چون اے لائی نے دوسری بار پاکستان کا دورہ کیا تو شکرپڑیاں میں پہلا یادگاری درخت لگانے کا منفرد اعزاز اپنے نام کیا۔ شکرپڑیاں میں بنایا گیا اسلام آباد کا نقشہ اور پودوں سے تراشی گئیں سرسبز ماگلا ہلز بھی سیاحوں کی توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ پرسکون ماحول اور پرفضا جنگلات اور تاریخ کا یہ انمول باب شکرپڑیاں میں ایسے مقامات سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتے ہیں۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ٹیوٹا پنجاب نے 5 بین الاقوامی آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان کمپنیوں میں ٹیلی مارکس کنسلٹنگ، اوریکل، ایس اے پی، کلک اور پاکستان میں گوگل کا آفیشیل پارٹنر ٹیک ویلی شامل ہیں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹیوٹا کے چیئرمین علی سلمان صدیقی نے کہا کہ معاہدوں کے تحت آئی ٹی کے شعبے میں مزید ترقی حاصل ہوگی۔ 3 سالہ معاہدوں کے تحت ٹیوٹا پنجاب کے 2 لاکھ طلباء کو جدید سافٹ ویئر کی تربیتی کورسز کرائے جائیں گے اور تربیت پانے والے طلباء کو مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں میں روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ زرعی معیشت میں لائیو سٹاک کا حصہ 40% کے قریب ہے۔ دیہات میں بسنے والوں میں 80 لاکھ افراد کی آمدن کا دار و مدار بھی مال مویشیوں پر ہی ہے۔ دودھ دینے والے جانوروں کی مقامی نسلوں کی پیداواری خصوصیات کو بڑھانے کے لیے اہم کردار کے حامل مویشیوں کی بریڈ امپروومنٹ اور تحفظ حیوانات کے حوالے سے محکمہ لائیو سٹاک کے ذیلی اداروں کے حوالے سے ملاحظہ کیجیے عاصم رضوان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ہماری قومی نسلوں کے ہائی کوالٹی کے جو بریڈنگ بلز ہیں ان کا سیمن کولیکٹ کیا جاتا ہے، سیمن پروسیس کر کے اس کو فریز کیا جاتا ہے اور پھر یہ سیمن پنجاب کے اندر تحصیل لیول کے اوپر ہر 10 دن کے بعد ہم اپنی سپلائی نیٹ ورک کے تھرو ان کو پہنچاتے ہیں۔ ڈیری کی مقامی نسلوں میں ممتاز ساہیوال کیٹل اور نیلی راوی کے بریڈنگ بلز کو خصوصی پروٹوکول کے تحت سیمن پروڈکشن یونٹ قادرآباد میں رکھا جاتا ہے۔ ان بریڈنگ بلز کے سیمن حکومت ارزاں نرخوں پر فارمرز کو ہر یونین کونسل کی سطح پر فراہم کرتی ہے تاکہ نمایاں خصوصیات کی حامل مقامی نسلوں کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافے سے کسانوں کی معاشی آسودگی کے اسباب فراہم ہو سکیں۔ یہ واحد ادارہ ہے جو 2017 سے آئیسو سرٹیفائیڈ ہے۔ سیمن کلیکشن جو ہے روزانہ ہی منڈے سے لے کے فرائیڈے تک صبح سورج نکلنے کے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو ہماری لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہیں ہماری لیبس کے اندر وہ بھی آئیسو سرٹیفائیڈ ہے، اس کے اندر اچھی پروسیسنگ کے تحت اس کو ہم سٹور کر لیتے ہیں۔ مقامی نسلوں کی پیداواری بہتری میں ایس پی یو قادرآباد کے ساتھ ساتھ جنگ میں قائم تحقیقاتی ادارہ برائے تحفظ حیوانات مقامی نسلیں بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ادارہ اعلیٰ پیداواری اوصاف اور بہترین بریڈنگ ویلیو کی حامل ساہیوال کیٹر اور نیلی راوی سے حاصل کردہ نر بچوں کی بلوغت کی عمر تک افزائش کے بعد انہیں سیمن کی فراہمی کے لیے ایس پی یو قادرآباد کو فراہم کرتا ہے۔ ہمارا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایسے سانڈ بیل پیدا کرنے ہوتے ہیں جن سے سیمن پیدا کر کے آگے جانوروں کی مصنوعی نسل کشی کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے سانڈ پیدا کیے جائیں کہ ان کی پیڈیگری اچھی ہو، اور اس میں سے جو بچڑا پیدا ہوتا ہے یا کٹڑا پیدا ہوتا ہے اس کو ہم پھر سلیکٹ کر کے اپنے کاف ریزنگ سینٹر پہ لے کے جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کو اپنے سیمن پروڈکشن یونٹ جو کہ ہمارا قادرآباد ضلع ساہیوال میں ہے
वहाँ पे मुंतकिल कर देते हैं। हैवानात की अफजाइश के हवाले से अहम माहौलियाती अंसर के एतबार से मुकामी नस्लें ज्यादा सूदमंद हैं। मुकामी नस्लों को जीनियाती एतबार से मजीद बेहतर बनाकर गैर मुल्की नस्लों पर इन्हिसार कम किया जा सकता है, जो कि ज़र मुबादला की बचत में भी अहम किरदार का हामिल है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में लिसानियात से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दौरे हाजिर में इशाती उमूर में दरपेश मसाइल और मकामी ज़ुबानों की अहमियत को उजागर करने पर जोर दिया गया। देखते हैं सरगोदा से आसिफ हनीफ की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के इंग्लिश डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 7वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड से आए गैर मुल्की माहिरीन ने मकालाजात और कलीदी खताब के जरिए नए जेतों पर रोशनी डाली और दौरे हाजिर में अशाती अमूर पर दरपेश मसाइल के हल पेश किए। वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम अजहर ने कहा, कौमी व बैनुल-अक़वामी माहिरीन मिल बैठे ताकि तालीम व तहकीक के शोबे में आए जमूद को तोड़ा जा सके। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले माहिरीन, मुहक्किकीन, स्कॉलर्स को शीट पेश की गई और शुरका के लिए कल्चर नाइट का भी इनकाद किया गया, जिसमें हाजिरीन मौसीकी से भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। आसिफ हनीफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सरगोदा। आपको बताएं कि बीनाई से महरूम बच्चों के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन कराची में तकरीब का एहतमाम किया गया, जबकि फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम ब्रेल प्रेस का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर। वज़ारत तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जानिब से बीनाई से महरूम बच्चों के लिए ब्रेल टाइटल्स की रौनमाई के मौके पर तकरीब से खिताब में मुक़र्रिरीन ने कहा कि नेशनल बुक फाउंडेशन में नाबीना बच्चों के लिए ब्रेल की किताबें अहसन इक़दाम है, जबकि मुआशरे के हर फर्द को इस कार्य खैर में आगे आना चाहिए। ब्रेल के बच्चे हैं, उनको स्कूल की जो बुक्स हैं उनकी बहुत शॉर्टेज है, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अब ये सिलसिला इसको हम तेज़ करेंगे। बच्चों ने तकरीब में मुख्तलिफ उन्वानात पर बहस व मुबाहिसे के जरिए अपनी इल्मी और खुदादाद सलाहियतों का इजहार किया और दाद समेटी। ब्रेल टाइटल्स की रौनमाई के मौके पर बच्चों के लिए खास तौर पर इरशाद किए गए टाइटल्स, जिसमें अर्तुग़रल, सिंड्रेला और क़ससुल अंबिया तकसीम किए गए। तकरीब में ब्रेल प्रेस की जानिब से नेशनल बुक फाउंडेशन में बीनाई से महरूम बच्चों के लिए खुसूसी सेक्शन के क़याम के लिए मावनत की यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, तहजीब, सकाफत, तमद्दुन और सुनहरी रिवायात को पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने ड्रामों के ज़रिए दुनिया भर में पहचान दी और बामे उरूज तक पहुँचाया। बिल्कुल नाज़रीन, और तबिंदा माजी की एक झलक अनकरीब पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर टेलीफिल्म मुझको पता है की सूरत में दिखाई देगी। यासिर अख्तर का ये मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट 23 नवंबर रात 9 बजे PTV होम की स्क्रीन की जीनत बनेगा। समंदर पार शूट की गई टेलीफिल्म में इंसानी जज्बों, रवैयों, उमंगों और एहसासात की दिल नशीन अक्सबंदी की गई है। डर लगता है कि किसी की नजर ना लग जाए। सांस पे हर एक नाम तुम्हारा जैसे मुझे पता है मैं वक्त की हूँ। हाथ ना लगा मुझे। कभी सुकून से रह नहीं पाओगे, ये एक माँ की बदुआ है तुम्हें। लगेगी बरसात रे मोरे नी। मेरी नजर ढूंढे तुझे, तू नहीं जो पास मेरे। उसका नाम अपने दिल से, अपने घर से निकाल दूंगा मैं, मगर उससे पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि आप क्या करें। Get out. मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मगर क्यों? क्योंकमैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। कि बिन तेरे जी न पाऊंगा, तू बस मेरा है। कि बिन तेरे जी न पाऊंगा, ये मुझको पता है, ये मुझको पता है, ये मुझको पता है। सुनो। हाँ। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेलीविज़न का दिन मनाया जा रहा है। टेलीविज़न की अहमियत को उजागर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1997 में इसे आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था।
दिन मनाने का मकसद इस हवाले से लोगों में शऊर उजागर करना और टीवी की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को सराहना है। पाकिस्तान में 26 नवंबर 1964 को तजर्बाती बुनियादों पर लाहौर से टीवी की नशरियात का बाकायदा आगाज़ हुआ। ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न ने मालूमात, तफरीह और ख़बरों के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में रंग भर दिए। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में टेलीविज़न के तकरीबन 9 करोड़ नाज़रीन मौजूद हैं। और आज दुनिया भर में माही परवरी का दिन भी मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से महकमा फिशरीज गुजरांवाला ने वजीराबाद के मकाम पर दरियाए चिनाब में लाखों की तादाद में मछली के बच्चे डाले। महकमा फिशरीज के हुकाम का कहना है कि हुकूमत फिश फार्मिंग करने वालों को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है ताकि ये अफराद मछली की अफजाइश के जरिए मुल्क में खुराक की ज़रूरियात पूरी करने में मुआविन साबित हो सकें। नाज़रीन, साफ माहौल हम सब की जिम्मेदारी है। इसी जज्बे के पेश नज़र लाहौर के एक जूस कॉर्नर में जूस के साथ शहरियों को एवोकाडो का पौधा भी दिया जाता है ताकि वो प्लांट ए ट्री के मिशन में शामिल हो सकें। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से वरदा सलीम। आजकल जहां माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल दरपेश हैं, वहीं माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए इनफरादी कोशिशों की भी ज़रूरत है। लाहौर के इलाके गड़ी शऊ में जूस बेचने वाला एक शहरी अपनी इस जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। इसीलिए तो वो ग्राहकों को जूस फरोख्त करने के साथ साथ एक एवोकाडो का पौधा मुफ्त फराहम करता है ताकि शहरी इसे अपने घर के आंगन में लगाकर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर सके। यहाँ से जूस भी है तो उन्होंने मुझे एक ही पौधा फ्री दिया है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसमें तामुन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि माहौल दोस्त जो है उसको बनाया जा सके। तो मज़ेदार भी है और ये मुझे गिफ्ट भी मिला है। हमारे माहौल दोस्त इक़दामात से फिजा को शफ़ाफ बनाया जा सकता है। सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे हम माहौल दोस्त भी बने, क्यों ना जो हमारे बीज होते हैं हम उनको उगाएं और फिर उसके पौधे बना के लोगों में तकसीम करें, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। एवोकाडो अपने अंदर बेपनाह ग़िज़ाइयत और अफादियत रखता है और ख़तरनाक बीमारियों के खिलाफ मौसर है। अब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उज़ैर अहमद की ये छोटी सी काविश दर हकीकत एक पैगाम है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। मुल्क को माहौल दोस्त बनाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में दिन के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा।